پانی روکنے کا بھارت اقدام جنگ سمجھا جائے گا، پاکستان نے خبردار کر دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پہلگام حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ پہلگام واقعے کا سیاسی مقصد کے لیے استعمال بھارت کی گھٹیا سوچ قرار۔ کہا پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے، پانی کی دستیابی ہر قیمت پر محفوظ بنائی جائے گی۔ پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ سول و عسکری حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیاں دو قومی نظریے کی سچائی کی دلیل ہیں۔ جیسے کو تیسا پاکستان کا بھارتی اقدامات کا جواب۔ بھارت کے ساتھ تمام تجارتی رابطے معطل، واہگہ بارڈر بند۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی اقدامات یک طرفہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیے۔ پاکستان نے شملہ سمیت بھارت سے تمام معاہدے معطل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتی ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ سکھوں کے سوا تمام بھارتی 2 دن میں چلے جائیں۔ بھارتی دفاعی، فضائی، بحری مشیر ناپسندیدہ قرار۔ 30 اپریل سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائی کمپنیوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود فوری طور پر بند، نوٹم جاری۔ پاکستان کے اقدامات سے بھارت کو فضائی مد میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کی بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت میں خلل پڑنے لگا۔ ایئر انڈیا، انڈیاگو، اسپائس جیٹ اور دیگر ایئر لائنز کی پروازوں کو ہنگامی صورتحال کا سامنا۔ طویل دورانیے کی پروازیں مختلف ملکوں کے متبادل ایئرپورٹس پر اتارنی جبکہ کئی رخ موڑنے پڑ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کا شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ جانے اور آنے والی پروازیں متاثر ہوں گی اور انہیں کروڑوں ڈالر کا خسارہ ہوگا۔ جو مودی کی سوچ جو اس خطے میں امن نہیں ہونے دے گی، جو پلوامہ کے بعد جو انہوں نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ان کا جہاز ڈاؤن ہو گیا، پائلٹ پکڑا گیا، ان کو وقفت اٹھانی پڑی۔ اس قسم کا پھر کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، جتنی فورس وہ استعمال کریں گے پھر اس سے کوئی 10-20% زیادہ ہی ہم استعمال کریں گے۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو رد عمل برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بھارت کو جواب دیا ہے اور آئندہ بھی جواب کی صلاحیت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا گجرات کا قصائی صرف ووٹوں کے لیے ملک کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بھارت کینیڈا میں لوگوں کے قتل میں ملوث رہا، امریکہ میں بھی سازش پکڑی گئی، باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ بھارت طالبان کو ہتھیار سپلائی کر کے پاکستان میں حملے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بھارتی فنڈڈ ہے۔ طالبان بھارتی ایجنٹ ہیں، BLA بھی بھارت نواز جماعت ہے، وہاں سے فنڈز حاصل کرتی ہے۔ سنتاس معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم کرے گا تو ہم کیوں شملہ معاہدہ لے کر بیٹھے رہیں؟ شملہ معاہدے سے بھارت کو زیادہ فائدہ ہے اور پاکستان کو کم۔ بھارت جیسے پڑوسی جس کا سربراہ مودی ہو، ایٹمی ہتھیار ہماری ضمانت ہیں۔ سینٹ میں بحث ہوگی، ضرورت پڑی تو APC بلائی جائے گی۔ بانی PTI کو APC میں بلانے کی ضرورت نہیں۔ I will say nothing more on that situation, as President Trump and Secretary Rubio have made clear. The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost. We, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. امریکہ کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال پوچھا گیا، کیا پاکستان بھارت کشیدگی ختم کروانے کے لیے امریکہ کردار ادا کرے گا؟ ترجمان دفتر خارجہ ٹمی بروس کا کہنا تھا، امریکہ جموں و کشمیر کے مسئلے پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی۔
मजीद कोई नई नहर नहीं बनेगी, वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक काम नहीं होगा, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मजीद की पेशरफ मुश्तरका मफादात काउंसिल में सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद एहतजाज खत्म हो जाएंगे। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बन रही। पीपल्स पार्टी का सिंध में 3 रोज तक इजहार तशक्कुर रैलियां और जश्न मनाने का ऐलान। निसार खोड़ो कहते हैं बिलावल भुट्टो ने 6 केनालों के खिलाफ सिंध के मौक़िफ़ को तस्लीम कराया। केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और अवाम के मौक़िफ़ को कामयाबी मिली। सूबाई हुकूमत CCI में भी सिंध का भरपूर मुकदमा लड़ेगी। अवाम आज से इजहार तशक्कुर रैलियां निकालें और जश्न मनाएं। पीपल्स पार्टी आज सखर में अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब जलसे से बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। भारत ने ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं। गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारत के खिलाफ PP क़यादत हुकूमत के शाना बशाना। वज़ीर आज़म ने बिलावल से मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत के जंगी ऐलानात पर रद्द अमल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले भारत के सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने के ऐलान की मजम्मत करते हैं। भारत मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर उठाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भारत को तंबी। कहा भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। मुआहिदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह है। शिमला मुआहिदा 2 तरफा है, हम उसे मुअत्तल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा भारत की गैर जिम्मेदाराना रवश इलाकाई अमन के लिए खतरा है। भारतीय मुहिम का मकसद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से आलमी तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अपने पानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। सिविल सोसाइटी ने एहतजाज में भारतीय आबी जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को डिमाश हवाले कर दिया। भारत को पाकिस्तान के जवाबी फैसलों से आगाह किया गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और जिला हटियां बाला में मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। कहा मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। मीरपुर में भी अवाम सड़कों पर निकले और पाक फौज के शाना बशाना भारत को दंडान शिकन जवाब देने का ऐलान किया। भिम्बर में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की। बगैर किसी एविडेंस के बस केस बना के पाकिस्तान पर दाग दिया है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। इस तरह होता नहीं है। 21वीं सदी में पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहिद और यकजुबान। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। PP सेनेटर शरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान ने भारत को इंतहाई मौसर जवाब दिया।
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खुद तकलीफ में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, भारत को अमन के नाम पर मजीद मौका देना कमजोरी का इजहार हो सकता है। हुकूमत फैसले करे, कौम साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत से इख्तलाफ है लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक कौम बनकर भारत का मुकाबला करना होगा। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का कोई जवाब नहीं। भारत से हमें खैर की तवक्को नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, पानी के मामले पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फौरी रद्द अमल देगा। की भीख मांग रहा हूँ लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। और तमाशा बना के रखा है आपने जो भी। भारतीय फौज मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा, 3 महीने से इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ जो भी फौजी सच बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। आजाद भारत में गुलाम बना दिया गया है। मोदी अमरीकी सदर से गले मिलते हैं। पहले हम फौजियों से आकर मिलें, हमें इंसाफ दें। भारतीय मीडिया भी बिका हुआ है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में वजीर खजाना ने सदर मासातो कांडा को एशियाई तरक्याती बैंक का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया। फिलिप मोरिस इंटरनेशनल के नायब सदर भी वजीर खजाना से मिले। वजीर खजाना ने पाकिस्तान सरमायाकारी के पुरकशिश मौके पर ब्रीफिंग दी। मूडीज की टीम से मुलाकात में वजीर खजाना का टैरिफ से मुताल्लिक उमूर पर अमरीकी इंतजामिया से गुफ्तगू जारी रखने के आज़म का इजहार। मूडीज की टीम को इस्लाहाती एजेंडे, इक्तिसादी आशारियों में बेहतरी से आगाह किया। सोशल मीडिया पर सियासी सरकारी शख्सियात की जाली वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 24 घंटों के दौरान पीका एक्ट के तहत 23 मुकदमात दर्ज। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है, काबिल एतराज और नाजेबा तशहीद में मुलव्विस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारों की तज़हीक करने वाले अनासर को सख्त सजा दिलाई जाएगी। कराची के इलाके शरीफाबाद में 3 साल का बच्चा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने बच्चे के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया। अहले मोहल्ला का कहना है, माँ बाप अक्सर अपने बच्चे को मारते पीटते थे। कराची के शेर एक और वार को तैयार। कोयटा के खिलाफ दूसरी बार भी मैदान मारने को बेकरार। अहम मैच से पहले किंग्स की LCCA ग्राउंड लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। स्टार कीवी बैटर केन विलियमसन ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कराची किंग्स ने होम ग्राउंड पर 5 मैच खेले, 3 में फतह के झंडे गाड़े। PSL मैच में लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान बाबर आजम और हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरियां। पेशावर ने हदफ 16.4 ओवर में पूरा कर लिया। लाहौर का टॉप और मिडिल ऑर्डर नाकाम। पूरी टीम 4 गेंदे पहले 129 रन बनाकर आउट हुई। सिकंदर रजा के सिवा कोई जमकर न खेल सका। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अपने जहन से ना जो वो स्ट्राइक रेट वाला मामला है ना, वो उसको निकालना पड़ेगा। बात है। तो वो अपना नॉर्मल गेम खेल ले तो मेरे ख्याल में जितना वो ग्रेट प्लेयर है तो मेरे ख्याल में उसको आने में कोई देर नहीं लगनी चाहिए। बाबर आजम को रन्स बनाने के लिए अपने जहन से स्ट्राइक रेट को निकालना होगा। 10 साल में पहली बार देख रहा हूँ वो रन्स नहीं बना पा रहा। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कहते हैं, बाबर एक अजीम खिलाड़ी है, उसे चीज़ों को नॉर्मल लेना चाहिए। हर बड़े खिलाड़ी के करियर में ऐसा वक्त आता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा, कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है।
ICC पाक भारत मैचेस अलग अलग पूल में कर दें, ब्रॉडकास्टर्स घर बैठ जाएंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा बाहमी सीरीज ना हो, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ICC इवेंट में क्यों खेले, हमें ICC इवेंट्स भी नहीं खेलने चाहिए। अदाकारा कुदसिया अली बनी मेहमान, सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफ़ा चौधरी बने अभिनंदन, आदि के बरचस्ता जुमलों ने सबको हंसाया। Target the body of Wazir. Wazir missing with his left hook counter. Overhand right though, lands for Wazir, and Aswaran is in a lot of trouble as he stumbles down to the canvas. और बॉक्सिंग रिंग में भी भारत नाकाम, पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर के सामने भारतीय हरीफ 2 मिनट भी ना टिक सका। बैंकॉक में हुई वेल्टर वेट फाइट के दौरान उस्मान ने मुक्कों की बरसात कर दी, भारतीय हरीफ ताबड़तोड़ वार न सह सका। रेफरी ने भारतीय हरीफ को टेक्निकल नॉकआउट करार दे दिया। उस्मान वजीर ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए करियर की 16वीं फाइट भी अपने नाम की।